Assalamu alaikum. Today we are going to start a new data structure, which is the tree data structure. Till that, we have learned the data structures which belong to linear data structure category. They include the arrays, linked list, stakes and queues. So all of them were the linear data structures. Now the base data structures are the array and linked list, and we implement the other data structures like stake and queues either with the help of stake, either with the help of array or with the help of linked list. Now we are going to discuss the new data structure, which is non-linear data structure, and this is known as tree data structure. So from the name, whatever the concept comes in your mind, most of the concepts of the tree will be used in this data structure as well. यानी कि डेली लाइफ में हम जो ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वही इसमें मोस्टली यूज होंगे. अब ट्री हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर है. ट्री is the non-linear data structure and it is also abstract data type. अब abstract data type का मतलब क्या है कि we define the operations, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज डन बाय अस. ऑपरेशंस जो होंगे उनको हम अपनी तरफ से जो है इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं. सो ट्री इज अ हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर. Trees can be implemented either by using array or by linked list. Like stakes and queues, the trees can also be either implemented by using array or by linked list. Hierarchical relationship है. But in normal daily life trees, the trees grow from bottom to top. Root of the tree is at bottom in daily life tree concept. But here in the tree data structure, the tree grows from top to bottom. Means the root of the tree is at the top, then it grows downwards. Now here we'll be discussing the binary trees. So what a binary tree is? Binary tree means that a tree, in the tree it is comprised of nodes like linked list भी, उसमें भी क्या होता है कि we have nodes. लिंक लिस्ट में हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट होती है यानी कि वन वे लिंक लिस्ट और टू वे लिंक लिस्ट. उसमें क्या होता है कि वन वे लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एवरी नोड हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, while in the two way linked list every node has the address of the next node and previous node. Now the binary tree, it is also a collection of nodes along with edges. ठीक है. अब nodes और edges उसमें होंगे. अब node क्या होगा? उस node a node may be the external node or internal node. अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था? लिंक लिस्ट में नोड तो थे, जो तमाम नोड्स थे वो सेम टाइप के थे, पर यहाँ पे क्या होंगे कि वी मे हैव द नोड्स ऑफ टू टाइप्स, द इंटरनल नोड्स एंड एक्सटर्नल नोड. नोड क्या होगा कि वो नोड में बी द चाइल्ड नोड, राइट. चाइल्ड नोड का मतलब है कि वो नोड जिस से कोई और चाइल्ड ना निकले. ठीक है.
और नोड के मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल चाइल्ड नोड्स इन अ बाइनरी ट्री कैन बी 2, ठीक है। और मिनिमम क्या होगा? 0, यानी कि कोई चाइल्ड नहीं है। अगर किसी नोड को कोई चाइल्ड नहीं है तो दैट नोड इटसेल्फ इज अ चाइल्ड नोड और एक्सटर्नल नोड। और नोड के पॉसिबल मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स कितने हो सकते हैं बाइनरी ट्री में? मैक्सिमम 2 nodes, child nodes can be there in a binary tree. उनको हम क्या कहते हैं भाई? लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड राइट चाइल्ड नोड. Each tree is comprised of at least one node. अब जब ट्री बनने की सूरत है तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि it must have at least one one node, that is root node. If tree is comprised of only one node, that is the root node, then its left and right child nodes will be null. इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास एक ट्री है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही नोड है जो कि रूट नोड है, यानी कि ट्री इज नॉट ग्रोन अप, सो उस ट्री में सिर्फ there will be the root node. It means that its child nodes will be null. If any of the node is not null, then it will have either left subtree or right subtree or both. अगर कोई चाइल्ड जो रूट नोड है उसका कोई चाइल्ड नल नहीं है तो अगेन उस ट्री में सब ट्री हो सकती हैं, मे बी राइट सब ट्री और लेफ्ट subtree and so on. So we'll see various examples of the tree. Let's see. अब ये हमारे पास क्या है कि ये ट्री है which has only one node which is the root node, यानी कि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है, राइट चाइल्ड भी नल है, यानी कि दिस इज नॉट अ ग्रोन अप ट्री. ये क्या है कि सिर्फ उसका रूट नोड है, ठीक है. We see the other tree in which the right child of the tree is null, यानी कि उसका right child नहीं है, सिर्फ left child है. तो ये एक जो है वो छोटा सा ट्री है जिसमें दो ही नोड्स हैं, एक रूट है और उसका लेफ्ट चाइल्ड है. सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट चाइल्ड इज नल, ओनली वन राइट चाइल्ड इज देयर, ठीक है. यहाँ पे जो है वो राइट चाइल्ड एक है. यहाँ पे नेक्स्ट ट्री हम देखें, इसमें क्या है हमारे पास राइट पे एक और सब ट्री है, ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि इस ट्री की लेफ्ट पे एक चाइल्ड है और फर्दर उसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे ही ये टर्मिनेट हो रही है लेफ्ट पे. जबकि राइट साइड पे वी हैव अ सब ट्री जिसका रूट ये है, ठीक है. उसका अब इस सब ट्री का क्या है कि लेफ्ट तो नल है पर राइट पे अगेन हमारे पास सब ट्री है, ठीक है, जो कि उस सब ट्री का रूट नोड कौन सा है? दिस वन. अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई कि जो बाइनरी ट्री होगी उसका हर नोड या तो खुद चाइल्ड नोड होगा या उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं. एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते. तो हम यहाँ पे देखें कि क्या ये चारों हमने जो देखी वो बाइनरी ट्रीज हैं या नहीं है. अब ये देखें रूट नोड है, उसकी जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, ठीक है. तो ये बाइनरी ट्री है क्योंकि हर नोड जो है उसको या तो 0 चाइल्ड नोड्स होंगे या मैक्सिमम 2, यानी कि 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. आए इस ट्री की तरफ. क्या ये बाइनरी ट्री है? यस. ये जो रूट नोड है उसका एक ही लेफ्ट
चाइल्ड नोड है, जबकि राइट नोड नल है पर लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये भी बाइनरी ट्री है। अब यहाँ पे इसको देखें कि यस, इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड नल है पर राइट चाइल्ड एक है। इसको देखें यस कि इसका जो रूट है उसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है। लेफ्ट जो चाइल्ड है नोड है वो जो है वो एक्सटर्नल नोड है, यानी कि फर्दर उसका कोई चाइल्ड नहीं है। राइट पे आए तो उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन राइट पे एक और सब ट्री है। उसके जो सब ट्री है उसको हम देखें कि उसमें दो चाइल्ड नोड्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो दिस इज आल्सो बाइनरी ट्री, means these all 4 are binary trees. Now we look at this tree. So whether it is binary tree or not, yes it is, क्योंकि हर नोड को देखें कि हर नोड या तो खुद चाइल्ड नोड होगा या उसके एक चाइल्ड नोड होंगे या मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो देखें कि हम हर नोड को अगर हम एनालाइज करें, ये पहला रूट नोड, उसमें 2 चाइल्ड नोड्स, अगेन इसका ये जो लेफ्ट चाइल्ड है वो खुद जो है वो एक्सटर्नल नोड है, यानी कि उसके कोई फर्दर चाइल्ड नोड्स नहीं है। राइट पे सब ट्री है, जो कि उसका सब ट्री का जो रूट है इट इज दिस वन एंड it has 2 child nodes maximum, right? So this is the binary tree, और इसकी भी ये सब ट्री भी बाइनरी ट्री है। इसी तरह इसमें आए, राइट पे एक चाइल्ड नोड है, लेफ्ट पे भी एक चाइल्ड नोड है, और उसका फर्दर उस लेफ्ट वाली जो है उसका चाइल्ड नोड है, तो ये भी एक सब ट्री फॉर्म कर रही है। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे यस ओके, यहाँ पे इसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं, फाइन, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नोड के 3 चाइल्ड नोड्स हैं। When there are 3 child nodes, then that is not a binary tree. ये binary tree नहीं है, क्योंकि in binary tree 3 child nodes are not allowed. So this is not the binary tree, but rest of them are the binary trees. Now we are going to discuss some concepts, other concepts relating to the binary trees. So first of all, the depth of the tree. So what is meant by the depth of the tree? अब यहाँ पे क्या है कि these are the nodes, ठीक है, ये जो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं these are the nodes and these lines are the edges. Means a tree is comprised of nodes and edges, ठीक है, edges connect the nodes, right? So what is the depth of the tree? Depth of the tree is the number of edges in a deepest node. अब इस ट्री में डीप नोड कौन सा है, यानी कि वो नीचे सबसे कौन सा नोड आ रहा है, देखिए this is the deepest node, this one is the deepest node, क्योंकि रूट से उसका कितना डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखें बीच में 2 नोड्स आ रहे हैं, उसके बाद रूट आ रही है, ठीक है, एफ का जो डिस्टेंस है रूट के साथ तो कितना है, बीच में 2 नोड्स आ रहे हैं, तो दिस वन इज द डीपेस्ट नोड। इसी तरह यहाँ पे देखें कि इसका रूट के साथ कितना डिस्टेंस है, बीच में सिर्फ एक नोड आ रहा है और इसका कोई डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ वो खुद ही जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसमें डीपेस्ट नोड कितना कौन सा हो गया, एफ, ठीक है। तो क्या करेंगे कि किसी भी ट्री की डेप्थ जो है वो मालूम करने के लिए what we have to see, we have to look at the deepest node, यानी कि वो नोड जिसकी जो है वो
ट्री के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो वो कौन सा नोड है इसमें, दिस नोड, राइट। तो इस का ट्री के रूट से मिलने के लिए कितनी एजेस का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, 1 2 3। So we see that the depth of this tree is 3. Then height of the tree. Height of tree is usually 1 more than the depth of the tree. So अब अगर इस हिसाब से क्या है कि डेप्थ अगर 3 है तो इसकी जो है वो हाइट शुड बी 4। अब 4 और उसके अलावा क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द डीपेस्ट नोड, यानी कि डीपेस्ट जो ब्रांच है उसमें कितने नोड्स आ रहे हैं। अगेन डीपेस्ट नोड हमारा कौन सा है, ये। तो ट्री के रूट तक कितने नोड्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस नोड एंड रूट नोड एज वेल। तो ट्री तक पहुंचने के लिए हमारे पास टोटल कितने नोड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। So the height of the tree is 4, यानी कि ट्री 1 जो है उसकी हाइट क्या है, 4 है। Then एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड्स। अब एक्सटर्नल नोड्स कौन से हैं और लीफ नोड्स, जिनको एक्सटर्नल नोड्स और लीफ नोड्स सेम एक ही चीज के दो नाम हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नोड वो नोड है जिसके चाइल्ड नोड्स, बोथ चाइल्ड नोड्स आर नल। अब देखें कि कौन से ऐसे नोड्स हैं जिनके चाइल्ड नोड्स नल हैं। अब बी है, इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो बी इज द एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड, यानी कि इसके दो नाम है, एक्सटर्नल नोड और द लीफ नोड। इसी तरह D is also a child node or the external node, क्योंकि इसका कोई child node नहीं है। F is also external और leaf node, जबकि E का एक child है तो वो external नहीं होगा, E is the internal node। Similarly C के दो child nodes हैं, that's why this is not external node, there it is internal node। E भी इंटरनल नोड है, C भी इंटरनल नोड है, उसके अलावा A इज आल्सो इंटरनल नोड। अब इंटरनल नोड, एनी नोड हैव 1 or 2 चाइल्ड नोड्स, ठीक है। अब A के दो चाइल्ड नोड्स हैं तो वो इंटरनल हो गया, C के भी दो चाइल्ड हैं तो इट इज आल्सो इंटरनल नोड, एंड E हैज 1 चाइल्ड नोड सो इट इज द इंटरनल नोड एज वेल। तो अब हम देखें कि हमारे पास ये 3 नोड trees are there। ट्री 1 का डीपेस्ट नोड कौन सा है, F, राइट। इसकी डेप्थ कितनी है, एजेस काउंट करें रूट तक, 1 2 3, सो इट्स डेप्थ इज 3। हाइट काउंट करें, उस डीपेस्ट नोड में पहुंचने तक हमारे पास कितने नोड्स आ रहे हैं, यानी कि रूट से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, so height of this tree is 4। What are the external nodes, B D and F? What are the internal nodes of this tree, A C and E? These are the internal nodes of this tree। We move to the second tree। अब इसकी डेप्थ क्या है और डीपेस्ट नोड्स कौन से हैं, क्योंकि ये दोनों सेम डेप्थ पे हैं, बी और सी दोनों डीपेस्ट नोड हैं और उनकी डेप्थ भी सेम है। अब कितनी डेप्थ है, यानी कि रूट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितनी एजेस आ रही हैं, जस्ट 1, सो द डेप्थ ऑफ दिस ट्री इज 1। व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या है, डीपेस्ट नोड में कितने नोड्स आ रहे हैं रूट तक पहुंचने के लिए, तो वो हमारे पास 1 एंड 2, तो इसकी हाइट जो है वो 2 है। एक्सटर्नल नोड्स कौन से, B and C, and internal node is A। Now we look at tree 3। अब tree 3 में हमारे पास इसकी डेप्थ क्या है,
और डीपेस्ट नोड कौन से हैं? अगेन ई और एफ आर द डीपेस्ट नोड्स। एंड सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ट्री, यानी कि रूट के पे पहुंचने के लिए कितनी एजेस आ रही हैं? ई के लिए कितनी आ रही है? 1 2 3। सिमिलरली एफ के लिए भी देखें 1 2 3, तो इसकी जो है वो डेप्थ है 3। एज इसकी हाइट देखें कि भाई रूट से लेकर उस पर्टिकुलर नोड तक कितने नोड्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, या इसको भी देखें 1 2 3 4, तो इसकी जो है वो हाइट 4 है। देन एक्सटर्नल नोड्स बी ई एंड एफ। एक्सटर्नल नोड की डेफिनेशन क्या है? एक्सटर्नल और चाइल्ड नोड्स, राइट, सेम थिंग के एनी नोड हैविंग 0 चाइल्ड नोड्स, तो बी कोई चाइल्ड नहीं है, ई का कोई चाइल्ड नहीं है, एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, so B, E and F are the external nodes, while A, C and T are the internal nodes. उसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं ट्री के we define the level number of any node, ठीक है। लेवल क्या होती है कि उसका उसके साथ नोड का जो रूट के साथ डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखें कि ये नोड ए जो कि खुद रूट नोड है, तो उसकी लेवल क्या है? 0, ठीक है। इसकी लेवल क्या होगी? 0, कोई डिस्टेंस नहीं है। अब बी और सी उनका कितना डिस्टेंस है? 1 का डिस्टेंस है, यानी कि बीच में कितनी जो है वो एजेस आ रही हैं? इट इज 1। बी और सी का जो है वो रूट के साथ कितना डिस्टेंस है? 1 का। सिमिलरली डी और ई उनकी जो है वो लेवल नंबर क्या है? 2 है। इसी तरह एफ की भी लेवल नंबर क्या है? 2 है, राइट। जी और एच की जो है लेवल नंबर क्या है? 3 है, यानी कि उसका उनका जो है वो रूट के साथ डिस्टेंस कितना है? 3, यानी कि बीच में हमारे पास कितनी एजेस आ रही हैं? 3। उसके अलावा हम आए कि किसी भी नोड के चाइल्ड का, यानी कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है, उसका लेवल नंबर विल बी 1 ग्रेटर देन इट्स पेरेंट। अब सी का पेरेंट कौन है? ए, ठीक है। तो ए का लेवल नंबर क्या है? 0, तो उसका जो सी का जो है वो लेवल नंबर क्या होगा? 1 होगा। अब ए के चाइल्ड नोड्स कौन से हैं? बी और सी। अब दोनों की जो है लेवल नंबर क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें जी को, ठीक है। अब जी का जो पेरेंट क्या है? एफ, ठीक है। अब एफ की लेवल नंबर क्या है? 2 है, तो उसके चाइल्ड जी और एच हैं, तो उनका लेवल नंबर क्या होगा? 1 मोर देन देयर पेरेंट, यानी कि उनका पेरेंट एफ का जो है वो लेवल नंबर 2 है, तो इनके चाइल्ड जो लेवल नंबर क्या होगा? 3 होगा, यानी कि चाइल्ड का लेवल नंबर इज 1 मोर देन द पेरेंट। उसके अलावा जनरेशंस, हम जिस तरह के जनरेशंस की बात करते हैं, हायरार्की की जब बात करते हैं, तो उसमें जनरेशंस की बात आती है। तो लाइक दिस के दे बिलोंग टू सेम जनरेशंस, यानी कि डी ई एफ दे बिलोंग टू सेम जनरेशन, यानी कि उनके सेम लेवल नंबर है, या उनका जो है वो जो रूट है उसके साथ सेम डिस्टेंस है। उसके अलावा इफ द टू चाइल्ड हैव द कॉमन पेरेंट, तो उन नोड्स को हम क्या कहेंगे? कि दे आर द सिबलिंग्स, यानी कि यहाँ पे सिबलिंग्स कौन से हैं? जी और
H सिबलिंग है, इसके अलावा D and E आर द सिबलिंग्स एंड B and C आर सिबलिंग्स, राइट। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें कि अगर the two nodes have the common grandparent, ठीक है, कॉमन ग्रैंड पेरेंट होंगे, तो डेली लाइफ में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है कि कॉमन ग्रैंड पेरेंट होंगे तो वो नोड्स क्या होंगे, कजन्स नोड कहलाएंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, भाई सिबलिंग, अब सिबलिंग्स क्या, भाई बहन, तो वो कॉमन पेरेंट है तो सिबलिंग होंगे। अगर कॉमन ग्रैंड पेरेंट है तो these nodes are said to be the cousin nodes like F and E, ठीक है, F and E they have common grandparent which is A, ठीक है, तो these are the cousin nodes। अब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको जब भी हम डिस्कस करते हैं तो we have to see how can we traverse that data structure, how can we process that data structure, how can we process the nodes or elements or items of that data structure. When we talk about tree traversal, we have three, we can traverse the tree in three different ways. What are these ways? In order traversal, pre-order traversal, and post-order traversal. In order traversal में क्या होता है कि we in order traversal the tree is processed in a way that first left child will be processed, then the parent will be processed, then the right node will be processed. प्री ऑर्डर में क्या होगा कि पहले लेफ्ट, देन वो नोड इटसेल्फ, देन राइट, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट द नोड इटसेल्फ विल बी प्रोसेस्ड, देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड विल बी प्रोसेस्ड। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट द लेफ्ट चाइल्ड, देन द राइट चाइल्ड, देन द नोड इटसेल्फ विल बी प्रोसेस्ड। सबसे पहले इन ऑर्डर, इसमें क्या है कि left child node, then the node itself, then the right child node. तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, node itself, left child, then right child. पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, left child, right child, then the node itself. So this is how the nodes are processed in the trees. यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अब हमारे पास क्या है कि वी हैव दिस ट्री, ठीक है, उसका रूट क्या है ए। अब उसके अंदर हमारे पास अगेन दो सब ट्रीज हैं, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। अब लेफ्ट में अगेन वी हैव दिस सब ट्री, इसको जो है वो मैंने बॉक्सेस में रखा हुआ है कि सबसे पहला उसकी जो है वो सब ट्री जो कि रेड में आ रही है, उसके अंदर अगेन हमारे पास एक सब ट्री बन रही है जो कि ग्रीन में आ रही है, उसके अंदर एक और सब ट्री बन रही है जो कि ब्लू बॉक्स में आ रही है। इसी तरह राइट की तरफ भी हमारे पास सब ट्री है जो कि रेड में ये पूरी आ रही है, उसके अंदर अगेन ब्लू में एक सब ट्री आ रही है। Now how we process the tree in by using in order traversal, how we'll do this? तरीका क्या होता है भाई, पीछे देखें। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या है कि पहले लेफ्ट, देन नोड इटसेल्फ, देन राइट चाइल्ड, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के लिए पहले हमने एक स्मॉल ट्री हम देख रहे हैं, ठीक है।
अब इसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, क्या है कि पहले लेफ्ट, देन नोड इटसेल्फ, देन राइट। तो यहाँ पे आए, ये हमारी सपोज करें कि ये ही टोटल ट्री है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, पहले लेफ्ट की तरफ से, तो पहले क्या प्रोसेस होगा, ए, देन नोड इटसेल्फ, वो नोड क्या है, ए, ठीक है, देन ए विल बी प्रोसेस्ड एंड देन राइट चाइल्ड, यानी कि लेफ्ट, नोड, देन राइट, तो फिर क्या होगा, सी, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग होगी पहले बी की प्रोसेसिंग होगी, देन ए, देन सी, ठीक है। अब ये दिस इज द मेथड ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। नाउ वी लुक इन दिस ट्री। ये ट्री किस तरह से होगी, अब ये देखें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें करनी है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या है कि पहले लेफ्ट नोड को प्रोसेस करना है। अब लेफ्ट में हमारे पास अगेन एक सब ट्री है, तो उसमें भी वही जो प्रोसेस यूज होगा कि भाई उसका भी लेफ्ट, ठीक है, उसका भी लेफ्ट आए, हम यहाँ पे उसका लेफ्ट ये है, अगेन वहां पे भी अगर सब ट्री है तो उसका भी पहले लेफ्ट। तो क्या प्रोसेस होगा सबसे पहले, जी, कैसे कि भाई तरीका यह है कि भाई पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट। अब इसका लेफ्ट क्या है, ये बी नोड, अब बी वो एक्सटर्नल नोड नहीं है, दैट्स व्हाई उसके भी हम लेफ्ट में जाएंगे, तो उसके लेफ्ट में हमारे पास क्या है, डी है, अगेन वो खुद एक्सटर्नल नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके भी लेफ्ट में जाएंगे, राइट। तो उसके लेफ्ट में क्या है, जी, राइट, तो वी विल प्रोसेस जी फर्स्ट, तो जी पहले प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इसकी प्रोसेसिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर राइट इट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा नोड, वो क्या होगा, इस ट्री में अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, लेफ्ट, नोड, राइट। अब रूट से स्टार्ट करें तो इसका लेफ्ट में क्या है, बी, ठीक है। अब बी अगेन उस वो अकेला नोड नहीं है, इट हैज अगेन सब ट्री ऑन इट्स लेफ्ट, तो हम अगेन उसके लेफ्ट में जाएंगे, अगेन वो भी फ्री नोड नहीं है, तो उसके भी हम लेफ्ट में जाएंगे, तो उसके लेफ्ट में क्या है, जी, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, जी विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट, यानी कि लेफ्ट, ठीक है। अब इसका जो लेफ्ट, ये लेफ्ट, जी किसका लेफ्ट है, इस नोड का, तो लेफ्ट प्रोसेस हो गया, देन नोड इटसेल्फ, यानी कि इस सब ट्री का ये नोड कौन सा है या रूट कौन सा है, डी है, तो दैट विल बी प्रोसेस्ड नेक्स्ट। अब इसका राइट, इस सब ट्री का राइट, अब राइट पे अगेन हमारे पास सब ट्री है, तो इस सब ट्री में अगेन वही लेफ्ट, नोड, राइट। अब इसका लेफ्ट क्या है, के, इसका जो है वो नोड या रूट क्या है, एच, दैट विल बी प्रोसेस्ड नेक्स्ट, एंड देन राइट, राइट, तो ये प्रोसेस हो गया। अब ये क्या हो गया कि हमारी यहां तक का ये जो है वो तमाम नोड्स प्रोसेस हो चुके। अब ये क्या है, इस सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री थी, इस बी के लेफ्ट सब ट्री थी जो कि पूरी प्रोसेस हो चुकी। फिर हम क्या करेंगे, इस बी को प्रोसेस करेंगे, फिर बी के राइट को। अब बी के राइट पे कुछ भी नहीं है, तो हम आगे करेंगे कि भाई अब ये बी क्या है कि बी से यहाँ पे एक ये पूरी लेफ्ट सब ट्री हो रही है, किसकी, इस ए की, तो इसका पूरा ए जो है वो ये सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो चुकी, यानी कि इसका लेफ्ट कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका। अब इस नोड को खुद को प्रोसेस करेंगे जो कि ए है। अब हम आएंगे राइट की तरफ, ठीक है, इसके राइट की तरफ आएंगे। अब राइट में भी अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, लेफ्ट, नोड, राइट। अब राइट जो है सब ट्री पे
इस सब ट्री में हम अगेन हमारे पास ये नोड है और उसके लेफ्ट पे ये नोड है, तो उसको पहले प्रोसेस करेंगे ई, देन इसका खुद नोड जो कि सी है, राइट पे गए, अगेन वही कॉन्सेप्ट जो कि लेफ्ट नोड राइट, इसका लेफ्ट क्या है आई, उसके बाद नोड क्या है एफ, देन जे. So this is how the all nodes are processed in order. In order process करने का हमारे पास तरीका क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, वे ट्री देखेंगे, उसके लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, देन उस नोड को, देन राइट को. ठीक है, तो रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ गए, तो लेफ्ट पे जो नोड है वो अकेला नोड नहीं है, एक्सटर्नल नोड नहीं है, वो अगेन एक सब ट्री है. तो उस सब ट्री को प्रोसेस करने के लिए वही प्रोसेस हमें यूज करना है, दैट इज लेफ्ट नोड राइट. तो इसको हम प्रोसेस करने के लिए अगेन इसके भी लेफ्ट पे जाएंगे, तो इसको देखेंगे कि इसकी लेफ्ट पे क्या ये अकेला नोड है, नहीं, अगेन यहाँ पे भी सब ट्री है. ठीक है, तो सब ट्री है तो उसके भी हम लेफ्ट पे जाएंगे, तो लेफ्ट मोस्ट नोड जो है वो प्रोसेस होगा. फिर ये किसका, ये जी को हम प्रोसेस करेंगे, फिर ये किसका सब नोड लेफ्ट नोड था, इसका डी का, तो डी को प्रोसेस करेंगे, देन राइट पे आएंगे, उस पे भी वही जो है लेफ्ट नोड राइट वाला, तो यहाँ पे लेफ्ट के है, उसको पहले प्रोसेस करेंगे, देन एच एंड देन एल. So this is how the all nodes will be processed. So this is the order in which all the nodes will be processed. सबसे पहले G, D, A, H, R, B, A, E, C, I, F, J. So this is the order in which all the nodes will be processed. So I hope the concepts of tree are clear to you now, and this in order traversal is also clear to you. If you have any question, you may ask. Okay, you don't have any question, it means that everything is clear to you. So we are going to end this lecture now, and inshallah you'll meet in next class. Till that, Allah Hafiz.